The dispelling of darkness and igniting thoughts and enlightenment. It's my honor to invite our director sir along with guests and judges to lighten the lamp. Sinner, O Lord, my deeds are sinful, my spirit is sinful, I was born in sin. Please help me, O God, for Lord, thou art alone my refuge, and I have no one else but you. To welcome our guests and the judges for this program. In this program of Beats 2023, especially from the core of my heart, I extend my deep welcome to all the judges here and the guests here, all the family members, parents, students, and ex-students in this program. Holy Mother Public School always not only focus on the academic excellence, we give importance to overall development of the students, especially in the field of character development, discipline, sports, music, arts, everything. Our champions are very good they are giving good performance in all sorts of field. So we are very proud about that, and also our ex-students are working in different fields. Many of them are doctors, and one doctor is here with us today in this program also. I welcome God out in this program. And even our treatment is also done by many of the doctors only, who are our ex-students. Very proud moment to share all this with you. And also, one important thing I would like to put into your attention is that our champions in table tennis participated in the 67th state tournament in Rajasthan of table tennis, and they got bronze medal in this tournament. This is a very good news for everyone. So without wasting much time, we can move forward for the program. A warm welcome to each and everyone, those who are present here. Thank you very much. आज हमारे बीच उपस्थित जजेस को आदरपूर्वक निमंत्रण देता हूं कि वो अपनी सीट संभालें और हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट से रजीज सर और सरिता मैडम आप आए और उनको बुके प्रेजेंट करें। रजीज सर
हमारे बीच में अभी इनका परिचय जब आपसे होगा तब आपको पता चलेगा कि भले ही उम्र में ज़्यादा दिख नहीं रहे हो। सदस्य तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुंतल साहब से कि हमारे लाला शंकर साहब को बुके दे करके इनका स्वागत करें। थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेली सर लेना अजमेर स्टील के साथ कोई तो एक प्रॉब्लम है। आइए मैं चाहूँगा कि हमारे जो जजेस को मोमेंट और अभी हाथ कर देगा। गौरव चौधरी का भी इस वक्त सम्मान करना चाहता हूँ। वाइस प्रिंसिपल सर, गिफ्ट ऑफ ये सचमुच एक वो डॉक्टर है। थैंक यू गौरव फॉर कमिंग। थैंक यू। Individual who had made significant contributions to the field of music and education. Currently serving as an assistant professor in the music department at KR Girls PG College in Mathura, Uttar Pradesh. Dr. Amrapali's journey is marked by excellence and a deep passion for music. Dr. Amrapali's academic journey began at a CBSE board in Delhi. She then pursued a BA in music from Delhi University, where she not only excelled but also earned a gold medal for her exceptional performance. Her dedication continued as she completed her MA in music from Delhi University, again earning a gold medal for her outstanding achievement. Subsequently, she was awarded the degree of MPhil in 2007 and PhD in 2013. Dr. Amrapali's musical journey began at a young age, learning classical music from her father, Pandit Indu Prakash Trivedi ji. She started performing on stage at a tender age of 12. She received valuable guidance from the late Srimati Shanti Sharma of Kirana Gharana, which enriched her musical knowledge. Dr. Amrapali developed a deep affinity for Thumri, Dabra and Bhajan. She attributed her success to the blessing of a great guru and their experiences that have shaped her teaching philosophy with a rich background in music education. Dr. Amrapali served as a music teacher in Kendra Vidyalaya, Sangathan for a decade from 2007 and 2017. She also worked as a director in Natkhat Utsav and Jhankar Utsav, a summer workshop organized by Sahitya Kala Parishad in New Delhi. Dr. Amrapali's contribution to music education extends to the realm of literature. She authored a book titled Kathak Nritya Shaili Mein Prayukt Gyan Ki Vibhinna Vidhan, published by Naitik Prakashan in 2015. Her research and insight have also found a place in various journals and publications such as Kala Sarovar, Sangeetika, Nag Nartan, among others. Dr. Amrapali's journey is a testament to her unwavering dedication to the world of music and education. Her accomplishments and contributions continue to inspire both students and those in the field of music. It is really an honor for us that she accepted our invitation and come all the way from Agra to be a part of Beats 2023. Thank you. Judge, who is Dr. Shweta Keshri. Dr. Shweta Keshri is a vocalist with specializations in classical and semi-classical music. She received her classical vocal training from the renowned vocalist of the Indore Gharana, Pandit Baldev Raj Verma, and her semi-classical training from Vidushi Suchitra Gupta of the Banaras Gharana. Currently, she serves as an assistant professor at Keshori Raman Girls Postgraduate College in Mathura.
Dr. Keshri earned her bachelor's and master's degrees from Banaras Hindu University and was honored with an honorary doctorate in vocal music from the same university in 2016. She also brings 2 years of experience as an assistant professor at the esteemed Punjab University in Chandigarh. She has authored a book and presented papers at numerous international and national seminars. Dr. Keshri has had the privilege of performing on prestigious stages such as Vigyan Bhavan in Delhi, Subah-e Banaras, and cultural evenings of international seminars. Additionally, she has been recognized for her role as a speaker at an international seminar organized by Banaras Hindu University. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and come all the way from Mathura to judge our musical competition Beats 2023. Thank you and welcome. Now, Beats is one of the most exciting programs that is being organized in our school, and it provides a platform for the students to showcase their talents and have a blast with music. Through this program, we give students an opportunity to express themselves and display their singing and dancing skills. So, to participate in Beats, students have to go through various rounds and stages. Firstly, they are being selected by their house masters and they were sent to the audition round. And after audition, 16 students were sent to the next round, that is semi-finale. And out of those students in the semi-final, the 4 outstanding performers are chosen for the finale round. So the journey has not been so easy for the student. There was a tough competition, and the competition is going to be tougher now because the competitors and the participants are full of zeal and enthusiasm, and they are going to blast the stage with their performances. I assure you that this program shall be full of exuberance and excitement that will create some beautiful memories for all of us. So, I would like to call my co-anchor, that is Kanika, to start the program. So, without further delay, let's start the program. So, Kanika, I would like to call you on the stage and please call the participants for today's program. All of you, I am Kanika. अब मैं आपको हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की प्रस्तुति के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। उससे पहले मैं कुछ 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मन मचल के मोर होना चाहिए, इस इवेंट में परफॉर्मेंसेस का दौर होना चाहिए। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। उससे पहले कुछ लाइनें। कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता, इसी तरह कोई भी समस्या ईश्वर बिना समाधान के नहीं होता। बस समाधान के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। पीड़ा का हर क्षण प्रभु को विश्वास बढ़ाने का एक अवसर है, इसलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में उस ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। और हमारे सामने हमारी पेशकश लेकर आ रही है गरिमा, जिनका प्रथम गीत है सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। सत्यम शिवम सुंदरम, इसका साहित्यिक अर्थ होता है सच्चा, कल्याणप्रद, मनोहर। 1978 में बनी फिल्म, ये 1978 में बनी हिंदी फिल्म है जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान की प्रमुख भूमिका थी। इसके निर्देशक और निर्माता राज कपूर हैं। गीत सत्यम शिवम सुंदरम बिनाका गीत माला की 1977 वार्षिक सूची में 6ठी पायदान पर रहा। इसके गीतकार पंडित नरेश शर्मा व गायक लता मंगेशकर जी थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संपादक राज कपूर थे। यह गीत आर के स्टूडियोज राजबाग लोनी में रिकॉर्ड किया गया। सो आई वांट टू कॉल गरिमा। बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वो थोड़ी जानकारी दोगे? लाखों में एक ऐसे बालक द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।
और राधा सलूजा हैं। ये फिल्म प्राण और महमूद द्वारा निभाए गए किरदारों के बीच भाईचारे में रिश्ते के बारे में है। ये तमिल फिल्म एथे नीचल की रीमेक है। इस फिल्म में आदि बर्मन द्वारा संगीत दिया गया है। जामिनी स्टूडियो द्वारा उसे उत्पादित किया गया है। 9 अप्रैल 1971 में इसे रिलीज़ किया गया है। इसके लिए बुलाना चाहूँगी। इनका पहला सॉन्ग है परछाई पानी पर पड़ी, जब अधूरे चांद की परछाई पानी पर पड़ी, रोशनी एक नाक मुकम्मल सी कहानी पर पड़ी। हमारी अगली प्रतिभागी है काव्या S3, जिनका पहला गाना है गुलाबी आंखें। शब्द में आंखें हैं उसकी, हर बार मुझे दीवाना बना देती है। मैं आपको इस गाने से संबंधित कुछ बताऊंगी, जानकारी देना चाहूँगी। 1967 की मलयालम फिल्म को कोचिन को रीमेक है। यह फिल्म लता मंगेशकर द्वारा गाए गए सदाबहार गीत किस लिए मैंने प्यार किया और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए जोशीले गीत गुलाबी आंखें के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आज भी रीमेक्स और रिक्रिएट किया जाता है। इन्होंने 1940 की हॉलीवुड फिल्म मिडनाइट लिमिटेड से प्रेरणा ली। टुगेदर फॉर काव्या। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। तालियां बजते रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन कलाकारों का हौसला यूं ही बढ़ाते रहे, तालियों से महफिल में सुरूर आ जाता है। सो प्लीज बिग हैंड्स टुगेदर। पहला गाना है रात कभी एक ख्वाब में आई। तेरी आंखों में मस्ती है, जब भी तू हंसती है बहुत सुंदर लगती है, तुझसे ही तो मेरी हंसती है। आई वॉन्ट टू कॉल एबल फॉर दिस सॉन्ग। तो मैं आप हमारे डांसिंग की फर्स्ट पार्टिसिपेंट मनस्वी को बुलाना चाहूँगी, जिनका डांसिंग स्टाइल है सेमी क्लासिकल फ्यूजन स्टाइल। And this competition has provided each and every finalist a platform to explore their passion in music and showcase their talents. So it's a very nice opportunity for all the participants and for all of us to witness the rock stars of our school in their action mode. So the journey of success is not an easy one. It requires dedication, perseverance, and a relentless pursuit of excellence. Today, we will acknowledge the remarkable students who have displayed these qualities and have emerged as winners in their respective fields. Their achievements serve as a testament to their commitment and passion. Today, we will honor the students who have excelled in their respective classes as well as those who have participated and won in various competitions. So, let's start with the academic prizes, and let me clear it. The prizes that will be awarded today represent more than just material rewards. They symbolize recognition, encouragement, and belief in the potential of individuals. These prizes serve as a motivation for all the winners to continue striving for greatness and inspire others to embark on their own journey of success. So I would like to call our director sir on the stage for the prize distribution, as well as Kuntal sir, President of Holy Mother Education and Charitable Society, and Professor Gerwal sir on the stage for the prize distribution, along with our headmistress. So please come on the stage for the prize distribution ceremony. Kavya Verma with 99.38%. Second
her parents. Please give a huge round of applause for all the toppers. Now let's move to the next class, that is class UKG. First rank goes to Eva Singhal with 95.38% marks. Second rank goes to Tejas Agrawal with 94.88% marks. I request Tejas along with his parents to come on the stage. Bhavya Chaudhary with 93.5% marks. I request Bhavya along with her parents to come on the stage. Please give a huge round of applause for all these teeny dots. First, and the first rank goes to Arun Pratap Singh with 97.63% marks. I request Arun along with his parents to come on the stage. Ivansh Kogalwal with 96.88% marks. Marks. Give a huge round of applause for all the toppers. करीमा सेकंड सॉन्ग प्रेजेंट करेंगी, जिनका सेकंड सॉन्ग है चंदा ओ चंदा। 71 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में महमूद और राधा सलूजा है। ये फिल्म प्राण और महमूद द्वारा निभाए गए किरदारों के बीच भाईचारे के रिश्ते के बारे में है। ये तमिल फिल्म एथिन नीचल की रीमेक है। जिनका सेकंड सॉन्ग है आजा सनम। आजा सनम की अनंत ठाकुर द्वारा निर्देशित 1956 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें राज कपूर, नरगिस मुख्य भूमिका में हैं। प्राण, जॉनी, गॉप, डेविड भगवान दादा के चरित्र भाग हैं। ये 1934 की अमेरिकी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट का रूपांतरण है। ये मुख्य भूमिका में नरगिस और राज कपूर की एक साथ आखिरी फिल्म थी। संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है और गीत हास्य जयपुरी और शैलेंद्र द्वारा लिखी है। चोरी के संगीत में लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में आजा सनम, की रात भीगी भीगी, जहां मैं जाती हूँ और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी द्वारा सवा रात की लॉटरी जैसे लोकप्रिय ट्रैक शामिल हैं। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नंदिनी। सिंगिंग पार्टिसिपेंट साव्या, जिनका सॉन्ग है तेरे बिना जिंदगी से। जार साहब के जादुई शब्द पंचम गाती धुन लता किशोर की गायकी और पर्दे पर सजीव कुमार व सुचित्रा जैन का जीवंत सॉन्ग है ये। हमारे नेक्स्ट सिंगिंग पार्टिसिपेंट्स केवल, जिनका सॉन्ग है प्यार हुआ छुपके से।
Prem Singh Kuntal along with Dr. Preetham for distributing the academic prizes for the next section. Goes to Chitis Chaudhary with 97.5% marks. Give a huge round of applause for Chitis. And the third rank goes to Manvi Gupta with 96.5% marks.
Ritika, come along with your mother, if she's there. The runner houses, and each house has 4 members to make the rangoli. So the winner house was yellow house and the runner house was green house. So I would like to call all the participants of yellow house, Ishika girl, Nancy, Deeksha and Muskan, to come on the stage and collect their prizes. So yellow house was the winner of Rangoli competition. I would like to call the participants of green house, Guliksha, Lipika, Nidhi and Pankaj to come on the stage and collect their prizes. And enthusiasts. So give a huge round of applause for all the winner and the runner team. So thank you everyone for joining us here. Now, a lot to their fields, so I would like to call them on the stage to share their experiences with the students and encourage the students to do better in their future, and so that students can learn from their experiences and their expertise. So I would like to call our judges on the stage to speak few words with the students. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि रियली मैंने बहुत सी जगह जजमेंट में मैं गई हूँ, लेकिन जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो सच में बहुत ही मेमोरेबल मेरे लिए रहा, क्योंकि इतना अच्छा गा रहे थे बच्चे, और जो एक प्लस पॉइंट जो और जगह देखने को नहीं मिलता जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया वो है कॉन्फिडेंस। और ये आप लोग हैं जो बच्चों में आप इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से या जो भी कह रहे हैं उनको एनकरेजमेंट के द्वारा आप जो है उनको इस काबिल बना रहे हैं कि नहीं हम बेस्ट हैं, हम जो कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस लाना ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो उसके लिए तो सारा क्रेडिट आपको जाता है, और बाकी अच्छा तो सभी गा रहे हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो तो आगे जब ट्रेनिंग होगी आगे हम सीखते जाएंगे वो धीरे धीरे सब समझ में आता ही रहेगा। लेकिन बहुत 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 ही प्यारा गाया है सबने, कितनी प्यारी सी वो कब से मैं उसको देख रही हूँ, इतना बढ़िया एक्सप्रेशन दे रही है, उसको लग ही नहीं रहा कि वो स्कूल में है, मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि बच्चों में कोई डर नहीं है, किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है, और अपनी फैमिली समझ के वो यहाँ पर हैं परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने बच्चों, बहुत ही अच्छा, बस ऐसे ही मेहनत करिए और क्लासिकल म्यूजिक ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि वही सब चीज़ों का बेस है। जो बच्चे डांस कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो एक ट्रेनिंग होती है भरतनाट्यम या कथक जिस भी फॉर्म में आपको इंटरेस्ट है वो सीखिए। अगर आपका वो पक्का है तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप क्लासिकल सीखोगे, स्वरों का ज्ञान लोगे, ताल का ज्ञान लोगे, तो आप बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी गाना हो कुछ भी कर सकते हो ना। तो अगर आगे बढ़ना है तो क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में, जो हमारे संगीत के लिए इतने डेडिकेटेड बच्चे हैं, उनके लिए जो टीचर्स हैं और जो आप लोग जिन्होंने लगातार बच्चों का उत्साहवर्धन किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो उनके लिए भी जो बात बहुत होते हैं संगीत की, और लगातार पीछे खड़े होते हैं, बच्चा गलत गा रहा है या कुछ संभल नहीं पाया है तो भी उसको संभालना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे आपका जो ये जो अनाउंसमेंट सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत उन्होंने जैसा उन्होंने मतलब प्री शेड्यूल जो भी रहा हो, जो चेंजेस आए उसको कैसे उन्होंने अपने आप से ठीक किया, और कितना बढ़िया से सब ऑर्गेनाइज हुआ सबको, बहुत अच्छा लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आप लोगों ने दिशा दी कि वो इतने मतलब स्टेज चाहे जैसा भी, वो एक बड़ी बात है कि वो बच्चा वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहूँगी कि जब
डांस में आप परफॉर्मेंस करते हैं तो कुछ उसमें एक मैसेज होता है। डांस इज लाइक एक्सप्रेशन, है ना। गाने में तो लिरिक्स होता है कि आपको डांस में आपको फेस के थ्रू एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो जिसके पास एक्सप्रेशन है मीन्स वो डांस का बेटर है। तो जब भी आप जजमेंट का रिजल्ट देखेंगे तो इतना समझिएगा कि एक्सप्रेशन में थोड़ा और ऊपर नीचे हुआ है ना। बाकी इस तरह से कुछ नहीं है कि किसी ने खराब किया या किसी ने अच्छा किया। और संगीत में जिसका सुर, जिसका ताल, दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा एक्सपेक्ट और कम भी है चलेगा, लेकिन अगर सुर और ताल से ज़रा भी बच्चा गया तो उसके नंबर कटेंगे, है ना। तीसरी चीज़ है बेटा प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको मुंह के अंदर मत बोलिए, उसको साफ साफ स्पष्ट रूप से बाहर को समझ के आना चाहिए, जैसे लिरिक्स है। तो सर ने बोला था कि कुछ परफॉर्म कर दीजिएगा, तो और एक बच्चा था जो हर गाने को बता रहा था कि मैं इस गाने के बारे में बताती हूँ। मुझे इस गाने के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद है। तो देखना कि ये गीत के बारे में क्या मतलब बैकग्राउंड क्या है। लता जी का ही गाना है। उठा
कोई नहीं, ये तो सब कंपटीशन लगा ही रहता है और हारने के बाद ना ज़्यादा मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में। लगता है कि ऐसा कैसा हो गया, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो कोई नहीं, जो फर्स्ट है उसके लिए भी खुशी का दिन है और जो सेकेंड थर्ड जो भी है उसके लिए भी वो अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि वो मेहनत करने की ना वो मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। तो ऐसा कंपटीशन वाली फीलिंग ज़रूर होनी चाहिए मन में। फ्रेंडशिप तो ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि हाँ मेरी फ्रेंड है, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गई और मुझे भी करना है अच्छा। जैसे अभी आम्रपाली ने गाना गाया तो मुझे लग रहा है यार मैं भी ताली बटोरूं, कुछ मैं भी गा दूँ। कोई नहीं, मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी। पहले में बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। जो फर्स्ट है हमारे, जिन्होंने तीनों ही सॉन्ग बहुत ही अच्छा गाया है, वो स्टूडेंट कॉन्टेस्टेंट नंबर 1, मैं नाम भूल रही हूँ, गरिमा। बहुत बढ़िया गाया बेटा, आपने तीनों सॉन्ग बहुत ही अच्छे गाए, बहुत ही बढ़िया। उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज बच्ची को जरूर आगे ट्रेनिंग दीजिएगा क्लासिकल की, और बहुत अच्छा कर रही है ये और अच्छा गा रही है आगे। हमारी संगीत में, गायन में S4 इसका नाम एबल बेटर, एबल इज एबल टू सिंग ऑल। बहुत ही अच्छा इन्होंने गाया, बहुत ही अच्छा। एंड कंसोलेशन प्राइज गोज टू S3। थर्ड प्राइज गोज टू काव्या। शी इज जस्ट लाइक माय यंगर डॉटर। बहुत अच्छा गाया है। और कंसोलेशन प्राइज इज फॉर S2 नंदिनी ने भी बहुत ही अच्छा गाया। एक गाने में आप भूल गए थे जिसकी वजह से थोड़ा लगा होगा, बट ये एक्साइटमेंट है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल कंटेस्टेंट्स, आप सभी के लिए। So I would like to call escorts with prizes. देखूं या स्टेप्स देखूं या एक्सप्रेशन देखूं, बहुत सारी चीज़ें थी
थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करके फोकस करें कि आपके स्टेप्स कैसे हैं और आपने क्या जो भी एक्ट किया या जो भी एक्सप्रेशन दिए वो कैसे है, और कोशिश की है कि फेयर जजमेंट हो। और तो जो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है जिसका ओवरऑल और सारे सेक्शन में अच्छा हम लोगों को लगा कि बहुत अच्छा किया, वो है पार्टिसिपेंट नंबर 1। थर्ड प्राइज जो जीत रहे हैं वो है पार्टिसिपेंट नंबर 4 Kanishka Vyas. Come on the stage. बहुत अच्छा मराठी प्रेजेंटेशन था, her expressions were also very good, and our consolation prize goes to D2 Ojaswini Sharma. प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ छोटे तलाशी हैं हमने जो आने वाले सालों में कुछ अच्छा चमत्कार करेंगे भरतपुर में।
सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर ना संगीत की प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए क्लासिकल हिंदुस्तानी या कर्नाटका ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। ले देकर क्योंकि इस तरह के चंद कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर। कुछ हमारे म्यूजिक स्कूल्स हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। और मेरी शुरू से ही एक ख्वाहिश रही है कि क्लासिकल में बच्चे अच्छा करें, चाहे वो डांस में हो चाहे सिंगिंग में हो, उसी की कोशिश में लगे हैं। और जितना हमारे टीचर्स कर पाते हैं, चाहे वो रजनी सर हो चाहे सरिता मैडम हो, ये बेचारे लगे रहते हैं बच्चों के साथ और पूरी कोशिश करते हैं। और जितना निखार पाए कि मेहनत है ये, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं आया नहीं था यहाँ पर। मैंने कल शाम को क्या किया, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है स्कूल का, एक का ड्यूटी डाल दिया कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, ये करना। मैं आराम से बैठा रहा। अदरवाइज क्या होता है कि मैं भी आ जाता हूँ मेरी बिछाने के लिए, क्योंकि टीम है, पूरा परिवार है, मैं ऐसे ही कर देगा। इस बार हमने इनके हाथ में दे दिया, इन्होंने इतना बेहतर बना दिया, अब मेरे को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो थैंक यू ऑल HMPs जो यहाँ पर हैं, जितने भी बच्चों ने अवार्ड लिया। आप लोग आगे भी इस तरह से अवार्ड लेते रहें, डांस में हो, सिंगिंग में हो। और हमारे जो गेस्ट आए हैं, कुछ आ नहीं पाए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली भैया, समय सिंह जी, के भाई, कुंतल साहब, शंकर साहब, देवाल साहब, मैडम भी अभी लेट आई है, इसका पनिशमेंट अलग मिलेगा आपको, वो अलग बात है। नहीं, वो अलग बात है, मैं इसकी बात करूँ। आप दोनों को पनिशमेंट तो मिलेगा। और बाकी जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए टाइम निकाल करके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जितनी कोशिश हम लोग कर सकते थे किया है, आगे और बेहतर करेंगे, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे मैडम ने कहा था कि जिन बच्चों को क्लासिकल सिखाना है उनको क्लासिकल सिखाएं, क्लासिकल की तरफ ही ले जाए बजाय बाकी चीज़ों की। तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ही वो कर लेंगे। मैं डॉक्टर श्वेता का विशेष आभारी हूँ, क्योंकि आज सुबह जब उन्होंने मेरे को कॉल किया, शायद मेरी आवाज़ सुन के इन्होंने फिर अपना विचार बदला। इनका छोटा बच्चा है जो बीमार है, तो मेरे से बोली सर मैं कैसे आऊँ, बच्चा बीमार है। मैंने एक बार तो बोला कैसे होगा, तो शायद उन्होंने उस फीलिंग को समझा होगा कि उसके बाद शायद आपके हस्बैंड का फोन था, उन्होंने कहा कि नहीं हम भेज रहे हैं, हम बच्चे को हम देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच। लेकिन आप दिल्ली गई हुई थी, मेरे से कल जब बात हुई तो बोले कि मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली से सुबह अकेले आ गई। तो ये एक बच्चा होता है ना संगीत के प्रति। तो सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसके बाद हमने लंच की व्यवस्था की है, सब लोग लंच लेने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, ठीक है? हाँ ओ सर, हाँ आप ही आइए। ये शायद एक्चुअली हम लोग अपने प्रोग्राम में ना बड़े प्रोटोकॉल्स को नहीं बुलाते हैं। क्यों? उसमें जैसे ही बैठे ना, अभी कोई किसी की हिम्मत नहीं उनके बीच में जाएगा। हाँ ऐसे ही करते हैं, और इन सबके प्रोग्राम में ऐसे होता है। तो हम पहुँच जाते हैं, बैठना है तो बैठना है 4 घंटे 6 घंटे, फिर किसी की हिम्मत नहीं है। अब वरना पॉलिटिकल इसमें जाओ तो नेता आके बैठता है साथ में, फिर वही बोलेगा सर पेनल्टी है। वो तो है एक चीज़ आप बता दो, आप भी क्लासिकल में इन्होंने कुछ सीखा हुआ है, तो इनको जो समझ में आया उस हिसाब से कुछ डिक्लेयर करना चाहूँ। स्वर लय ताल का थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं कुछ गाने नहीं आया हूँ। मुझे जो बच्चियों के गाने और उसके नृत्य ने जो अभिभूत किया, तो मुझे लगा उसको प्रमोट करें, उसको एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में ही मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं मंच पर S1 को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट प्राइज पाई है। बहुत अच्छा गाना गाया, और लता मंगेशकर के गाने को सत्यम शिवम सुंदरम को जिस बखूबी से गाया, आप लोगों ने दोनों देखा। और बेटा मैं तो जैन साहिब भाई से बोल रहा था कि ऐसे ही बच्चे हैं जो इंडियन आइडल और लिटिल चैम्प वगैरह में जाने वाले हैं। और वो जो बच्चे ने डांस किया था D3, उसकी जो भाव भंगिमा थी, उसका जो एक्सप्रेशन था वो कमाल का था। तो मेरे मन में आया कि मैं बच्चों को उपहार दूँ, तो बेटा ये मेरी तरफ आपके एक्सप्रेशन तो कमाल के थे, आपका नृत्य बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
हौसला अफजाई के लिए। तो आज अपने इस प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करते हैं और लंच की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मैडम भी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में। हमारे मेंबर हैं बहुत संस्था के समय से की मुरली भाई। हमारे पीछे जो बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया, विजय जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नफरत की लाठी तोड़ो, खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, देश के आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। और सब लोग खा करके ही जाएंगे।